breaking information we are receiving. An accident that's taken place. At least 5 wagons of a freight train got derailed near Patel Nagar of Delhi. Now, initial input suggests no casualties. Official confirmation is still awaited on this. But yes, this is the information we have received. And right now, we will move on to Akash Sharma to understand more and get some more details with regards to this accident. Akash, very good afternoon to you. Well, if you could tell us what exactly happened and how this came about and some more details with regards to the incident. Yeah, good afternoon. One correction, we have at least 8 wagons of this freight train derailed as of now, and this incident happened at around 11:24 this morning. We have been told that one trespasser who was, there on the track at that point in time has got some sort of injuries, though we haven't got any sort of official confirmation. As of now, Delhi DRM, that is Divisional Rail Manager, is going towards the particular site. This has happened at around 11:24 and at Patel Nagar, near Daya Basti and Jakhira flyover. Also, this is very important because we have got dramatic visuals out of the particular incident where, you can see that wagons are getting derailed. Investigation will lead us to the point as to what was the main reason behind the particular derailment, but this is concerning. Also, we have been told that GRP, RPF and also the, rail administration is at this point in time present on the very site. DRM, as I mentioned earlier, is moving towards the very site, and we are waiting for the official information as to what actually happened at what time and under what circumstances. Right, Akash. Akash, thank you for bringing us all those details. Well, with that, we're now moving on to some very crucial piece of information that we're receiving from the national capital yet again, wherein Delhi Chief Minister speaks in the Delhi Assembly. Let's listen in to what he is saying. वो डेटा एंट्री ऑपरेटर था। एक दिन एक ऑर्डर पास करके इन्होंने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। अब अस्पताल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई नहीं बचा। अरे करना क्या चाहते हो? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या? एक दिन फरिश्ते स्कीम कि अगर दिल्ली की बाउंड्री के अंदर किसी का भी एक्सीडेंट होगा उसका फ्री में इलाज किया जाएगा, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी अस्पताल में हो। 23,000 लोगों का हम फ्री में इलाज करा के उनकी जिंदगी बचा चुके हैं। इन्होंने फरिश्ते स्कीम बंद करा दी। इन लोगों ने, इतने घटिया किस्म के लोग हैं ये लोग। मेरा दिल रोता है जब मैं ये सारी चीजें, मैं जानता हूं किसी दिन लिखूंगा ये सब कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितने घटिया स्तर के ऊपर इन लोगों ने काम किया है। ये राजनीति होती है। ये राजनीति सत्ता के लिए तुम किसी भी हद तक चले जाओगे, कुछ भी करोगे सत्ता के लिए। अरे मेरे से दुश्मनी है, मेरे को गालियां दे लो यार, दिल्ली के लोगों का इलाज तो मत रोको कम से कम। आप लोगों को लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है। भाई सरकार तो हमारी है, फिर ये कैसे रोक सकते हैं? ऐसा मन में आएगा ना कि भाई सरकार तो हमारी है, सरकार तो केजरीवाल की है, फिर ये कैसे रोक सकते हैं? मैं बताता हूं कैसे रोक सकते हैं। सर्विसेज इनके पास है। सर्विसेज का मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग, किस अफसर को कहां लगाना है, कहां से हटाना है, किस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करनी है। अगर कोई अफसर करप्शन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, विजिलेंस, जेल भेजना, ये सारा इनके पास है। पूरा अफसरशाही के ऊपर और स्टाफ के ऊपर और कर्मचारियों के ऊपर इनका कंट्रोल है। आज मेरे को जो मेरा चपरासी मेरे कमरे में चाय पिलाने आता है, अगर कल वो कह दे मैं चाय नहीं पिलाता, मैं उसकी ट्रांसफर नहीं कर सकता मुख्यमंत्री होके भी। इतनी भी पावर नहीं है मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, भाई ऐसे सरकार नहीं चल सकती, इनके ऊपर कंट्रोल मुख्यमंत्री का होगा। इन्होंने कानून ला के पास कर दिया कि नहीं, कि मुख्यमंत्री का नहीं होगा, एलजी का कंट्रोल होगा, केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। अब ये क्या कर रहे हैं? एक 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 आईएएस अफसर को बुला के धमकी दी जा रही है। धमकी क्या दी जा रही है कि अगर तुमने इस सरकार का एक भी काम किया, किसी भी मंत्री का एक भी काम किया, तुमको जेल भेज देंगे, तुमको सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारे ऊपर झूठा केस बना देंगे। जैसे इतने सारे झूठे केस अभी इन्होंने बताए, तुम्हारे ऊपर झूठा केस बना देंगे, सस्पेंड कर देंगे, ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे। खबरदार अगर तुमने इनका साथ दिया तो। रो रहे हैं आईएएस अफसर, रो रहे हैं दिल्ली सरकार के कर्मचारी। एक मेरे पास अफसर आया, टप टप आंसू बह रहे थे, 56 साल की उम्र है उसकी, और टप 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 आंसू बह रहे थे।